Joe Rajan. Good afternoon, friends. I welcome every one of you here. And since this day we are launching this song, Pyar Tera, I would first like to invite Mr. Vipin Patwa here on stage. Vipin is the music director. He's given me 4 lovely tracks in the movie. So I would like to share an incident when Vipin came to me with this music and he was humming this song. I loved it at the first go. And I asked Vipin, who's going to sing this song? So Vipin tells me, I am going to sing because ye mere liye bana hai song. I said, no, Vipin, I want Sonu Nigam. Is that possible? So he was a little disappointed though, but he confidently told me, yes, I will get Sonu Nigam. Though he was the first time music director, he confidently told me he'll get Sonu Nigam. So Vipin, thank you for getting Sonu Nigam. Sonu, thank you so much for accepting this song. And jokes apart, Vipin is a very fantastic and a lovely music director. I mean, he's got immense talent in him. And on top of that, when he works with all the big talents like Sonu, KK, Shan, Sunidhi, Shreya Ghosal, he works with a lot of comfort and a lot of ease. So I think this bundle of talent will take him a long way. All the best, Vipin. Sonu ji, before I call you on stage, I want to tell you, when Vipin came to me with all the 4 tracks, I told him, I want all the 4 tracks by Sonu Nigam. I'm a little greedy for your voice. But anyways, the whole world is. I heard all your songs, but Pyar Tera I've heard almost 10,000 times. This is one of my favorite songs. I'm not nobody to comment on music, but I like to listen, and I always like listening to your voice. Sir, Sonu Nigam, you are India's most talented, and I can say most, God has created you, I don't know for what. We all love your voice, and we are so part that Sonu lives, sings for us in the generation that we are living in. Thank you, Sonu. Can I invite, please, Sonu Nigam on stage, please? Can I request Sonuji to speak a few words, please? First of all, I'm really, really humbled by your words, Joe. Thank you very much. It is an honor to be loved by the director, first of all. Today, we are going through a time where music is, of course, has always been a very, very vital aspect of filmmaking. But there's too much music happening, all kinds of music happening. So when you get to know or get to work with people who love you or appreciate you, you really feel special. So thank you for all the love that you are giving me. I'm really, really hoping that the film and the music will be a benchmark in the world of entertainment. As far as Vipin is concerned, I understand his sentiments. He's a wonderful composer and he sings very well too. So of course, when he came up with this song, I'm sure he would have thought that isko main hi ga दूं. वो आजकल सारे composers ये चाहते ही आपकी अपनी गलती नहीं है, हर कोई ये चाहता है और उसमें होना भी चाहिए, because in the West also a lot of people compose and sing themselves. So times are changing. But thank you for giving the song to me. It is a wonderful song. और मैं खुद उसको ढंग से सुनना चाहूँगा. इसके 2 version है actually. There's a normal proper film version and there's an unplugged version. दोनों ही अपने आप में बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए हैं और कोशिश की है कि दोनों के साथ में अच्छा इंसाफ किया जाए. इनफैक्ट जस्ट 4 दिन पहले विपिन मेरे पास में आए और मुझे इसका मिक्स सुनाया अनप्लग्ड का. बहुत बढ़िया मिक्स किया इन्होंने उसको. सो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ही जो उसके वर्जन्स हैं आपको पसंद आएंगे. म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए जो एक फिल्म के साथ ख़त्म ना हो जाए. फिल्म जब सुपरहिट होके उतर भी जाए तो भी गाना जहन में गूंजे या हमेशा हिट रहे, जैसे अग्निपथ का अभी मुझ में कहीं है. फिल्म अब नहीं लगी, गाना अभी भी लगा हुआ लोगों के दिलों में. वैसे ही लव यू सोनू का जो ये गाना है प्यार तेरा, मुझे उम्मीद है कि जो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी उसके 2 साल के बाद में भी ये गाना
फिर 10 साल के बाद में भी ये गाना मैं गा रहा हूँगा. तो दिस इज़ व्हाट आई होप फ्रॉम दिस सॉन्ग. थैंक यू सोनू. विपिन जी, आपको कुछ कहना? आप कहिए. मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ थैंक यू बोल देना चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले तो मेरा दिस इज़ माय फर्स्ट सॉन्ग. इस इंडस्ट्री का मेरा पहला गाना होगा. मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी और लकी था मैं कि मेरा पहला गाना. Anybody else from the media who would like to ask a question? नहीं, ऐसा नहीं. मेरे ख्याल से वक्त बदलता रहता है. आज सभी लोग एक दूसरे की टेरिटरीज पे जैसे कहते हैं ना, हर कोई अपनी टेरिटरीज को लांघ रहा है और दूसरे की टेरिटरी में जा रहा है. एक्टर्स डायरेक्टर बन रहे हैं, डायरेक्टर्स एक्टर बन रहे हैं, एक्टर्स सिंगर बन रहे हैं, सिंगर एक्टर बन रहे हैं. वैसे ही कंपोजर सिंगर बन रहे हैं, सिंगर कंपोजर बन रहे हैं. तो और आज का ज़माना भी ऐसा है. फ्रैंकली आपको सच बताऊं तो देयर आर 2 सॉफ्टवेयर्स which have changed the face of music. They're called Antares and Melodyne. ये 2 सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी वजह से अगर मैं आपके सामने गाना बोल भी दूं, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, इतना बोल के भी आप उस गाने को सुर में ला सकते हो with the help of Melodyne and Antares. तो इन 2 सॉफ्टवेयर की वजह से गाना और अच्छी तरह पेश करना बड़ा आसान हो चुका है. सो बहुत सारे कंपोजर्स या बहुत सारे सिंगर्स इसकी मदद से सिंगर्स हो जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि कंपोजर्स में अच्छे सिंगर नहीं हैं. पहले भी बप्पी दा अच्छे गाने गाए उन्होंने, है ना. तो आज भी ऐसा नहीं है. अगर आप ये जो गाना है अगर आप विपिन की आवाज़ में सुनेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा. बहुत अच्छा गाते हैं ये. सो कुछ लोग लिटरली सिंगर होके साथ में कंपोज कर सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है. अमेरिका या और यूरोप के देशों में जैसे बीटल्स थे, वो खुद अपने गाने बनाते थे और खुद ही गाते थे, है ना. तो ज़रूरी नहीं है कि कंपोजर अपने गाने नहीं गा सकता. अगर वो गाने को सक्षम है तो वो अपने गाने गा सकता है 100%. सो इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई हमारा हक मार रहा है या हमारे हिस्से का कुछ लेके जा रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. मैं नहीं मानता इस बात को. एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मतलब मैं सिंगर हूँ नहीं, पर थोड़ा बहुत इंस्पायर हूँ और वो इंस्पिरेशन हमारे सोनू जी हैं. तो जिसको बिल्कुल आप माइंड नहीं करेंगे कि मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ. ट्रीट यू एज अ ब्रदर. तो बस Of course, I absolutely understand and you sing really well, of course. थैंक यू. सोनू जी, आप इस फिल्म को करने के लिए क्यों इंस्पायर हुए? क्योंकि आप शाहरुख खान जैसे तमाम सुपरस्टार्स के लिए गा चुके हैं. ये फिल्म नई लग रही है, छोटे बजट की लग रही है, फ्रेश चेहरे इसमें हैं. आप क्यों प्रेरित हुए इस फिल्म के लिए गाने के लिए? ऐसा नहीं होता. जब मैंने मस्त में गाया था तो आफ्ताब भी नया नया आया था. सारे गाने हिट थे उस फिल्म के. तो यू कांट जज अ फिल्म की उसमें नए चेहरे हैं या उसमें शाहरुख खान है या नहीं है. आप गाने और गाने बनाने वाले उनके क्रेडिबिलिटी को देख के आप काम करते हैं. और बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं आज भी नहीं, पहले से ही मैं आई बिन सिंगिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल. जो पहले पदार्पण हुआ था 2000 में, आफ्ताब आया था फर्स्ट टाइम मस्त में, तब हमने उसमें गाया था. तो गाने अच्छे होने चाहिए. इट डजंट रियली मैटर कि किस पे पिक्चराइज है. अपने क्रेडिबिलिटी पे गाने अमूमन चलते हैं, चाहे वो प्राइवेट म्यूज़िक पे हो या फिल्म पे हो. और इस खूबसूरत जोड़ी है. मुझे पता है कि द फिल्म हैज़ बीन मेड विद अ लॉट ऑफ पैशन. मुझे पूरा विश्वास है वाईकॉम अगर उसे प्रमोट कर रहा है या रिलीज़ कर रहा है तो वाईकॉम कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि वो एक छोटे बजट की फिल्म को छोटे तरीके से रिलीज़ करेगा. कुछ ना कुछ देखा होगा तभी इस फिल्म को रिलीज़ कर रहा है. सो दिस इज़ नॉट अ स्मॉल फिल्म. ये अनोखी बात है. और इसका एक्चुअली उदाहरण यही है कि कौन सी बड़ी फिल्म में किसी गाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है. तो आप यही सोच लीजिए कि अगर एक गाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है तो ये फिल्म छोटी नहीं हो सकती. बहुत अच्छी बात है ना. बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा सोच रहे हैं लेकिन गाने को उतनी महत्ता दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है. वरना तो लोग कॉस्ट पे ध्यान देते हैं, बजट
कॉस्ट कटिंग की बात करते रहते हैं हमेशा। अगर ये लोग उस चीज़ को सोच रहे हैं कि ये गाना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है या वी हैव टू प्रमोट दिस फिल्म लाइक दैट, तो आई लाइक दिस स्ट्रैटेजी एंड दे आर थिंकिंग विद द राइट ब्रेन्स। सोनू जी, मेरा सवाल यहाँ सामने जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि गाने पहले जैसे नहीं बनते, लेकिन रीज़न क्या मानते हैं? म्यूज़िक हावी है? क्योंकि लोगों को अब जो गाने आते हैं कुछ दिन याद रहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन पुराने गाने आज भी लोग याद करते हैं, उन्हें याद रहता है। अगर कोई फेवरेट सॉन्ग बोला जाए तो पुराने गानों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। तो आप रीज़न कमी कहाँ मानते हैं कि गाने वैसे नहीं बन रहे, वैसे लिखे नहीं जा रहे हैं, या गाए नहीं जा रहे हैं, या म्यूज़िक हावी है? अच्छा सवाल है आपका। इसका आपको मैं बड़ा क्लियर आंसर दूंगा इसका। इसका एक पॉलिटिकली करेक्ट आंसर हो सकता है कि पहले ये, अभी ये, वो सब। बट आई टेल यू, मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है और काम कर रहा हूँ। एक हर इंसान का चरित्र, कैरेक्टर उसकी म्यूज़िक में आता है। अगर आप, या आर्ट में आता है। अगर आप पेंटर हैं तो जो आपके अगर आपके अंदर अग्रेशन है तो आपकी पेंटिंग में अग्रेशन आएगा। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपकी पेंटिंग में स्पिरिचुअलिटी आएगी। म्यूज़िक में भी ऐसा होता है कि अगर आप में ठहराव है तो आपकी म्यूज़िक में ठहराव आता है। आज के ज़माने में ठहराव का मौका अमूमन कंपोजर्स को नहीं मिलता। फटाफट काम करना होता है, एकदम ये डेडलाइन, ये डेडलाइन, ये गाना, ये सिचुएशन, ऐसा ऐसा। तो उसमें जल्दी में गाना बनता है, और उस जल्दी में फटाफट गाने में जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक कैची वर्ड डाल देना, फिर एक वर्ड को बार बार रिपीट करना, कोई हुक बना के। जैसे यहाँ मॉनिटर्स पड़ा है, मॉनिटर्स पड़ा है, मॉनिटर पड़ा है, मॉनिटर पड़ा है यहाँ, तो गाना 3 बार कर दी तो हिट हो गया। तो ऐसे ऐसे फटाफट हुक वर्ड को देखा जाता है कि ये एक चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए। तो अमूमन गाने 2-4 जैसे कहते हैं ना ये एक तरीका होता है, कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, कि गाने को कैसे हिट बनाया जाए, कुछ हुक वर्ड को सोच के। तो फिर जब गाने में वक्त नहीं दिया जाता इतना, तो गाना भी शॉर्ट स्पैन होता है। जब गाने को बहुत मन से सोच के, फिल्में भी ऐसा होता है, जो लोग बहुत सोच के या टाइम देकर बनाते हैं वो फिल्में ज़्यादा लंबे समय तक अप्रिशिएट की जाती हैं। गाने में भी ऐसा होता है। पहले के ज़माने में शायद वक्त ज़्यादा दिया जाता था। एक गाने को बनाते वक्त, सिखाते वक्त, रिकॉर्ड करते वक्त सबके सब एक साथ होते थे। सिंगर भी 20-20 बार गाने को गा रहा है, बजाने वाले भी साथ में बजा रहे हैं। सो यू गिविंग सो मच टाइम टू अ सॉन्ग, इट इज़ बाउंड टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी फटाफट गाने बन जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आज के गाने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। ऐसे कई गाने हैं जो जैसे ये गाना मैंने नहीं गाया है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, खुदा जाने के मैं हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो ऐसे गाने होते हैं जो बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। फिल्म चली जाती है पर गाने रहते हैं। मैंने तो वैसे बहुत सारे गाए हैं, सूरज हुआ, मध्यम, या कल होना हो, या अभी मुझ में कहीं, अग्निपथ, अभी ये लव यू सोनी को जो गाना है ये। सो आई एम होपिंग कि ये गाना भी उसी लिस्ट में, लेकिन आज नहीं सुनाऊंगा। आज लव यू सोनियो का है तो आज नहीं गाऊंगा, ये चीज़ आराम से गाऊंगा, आपके कान में गा दूंगा। आप बाहर आना, फिर आपके कान में गा दूंगा, मैं गा देता हूँ। उसकी एक ही लाइन मुझे नहीं आती, बस लिरिक्स पढ़िए। प्यार तेरा इस तरह से मुझ में शामिल हुआ, ओ दिन ब दिन तेरे बिन जीना मुश्किल हुआ, ओ जाने कैसे इश्क आया दिल की ज़मीं पे, जाने कैसे हल्के से रखा कदम, घर घर गया हमारे दिलों में ऐसे, हाँ ना तुम जानो ना हम। गाओ। प्यार तेरा इस तरह से मुझ में शामिल हुआ, दिन ब दिन तेरे बिन जीना मुश्किल हुआ,
ओ जाने कैसे इश्क आया दिल की ज़मीं पे, जाने कैसे हल्के से रखा कदम, घर कर गया हमारे दिलों में ऐसे, हाँ ना तुम जानो ना हम। Lovely. Thank you. This is when you realize how legends are made. Absolutely brilliant. And do not forget, नए लोगों की फिल्म को हमेशा छोटा नहीं कह सकते। गानों को बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। विपिन ने बहुत अच्छा काम किया है इस पर, और मुझे ये खुशी है कि अभी मुझ में कहीं के बाद में हर एक फ्रेंड का मीना होता है, अर्ली मॉर्निंग जैसे बदमाशी वाले गानों के बाद में अब एक समझदारी वाला गाना एक और आया है जिसमें रोमांस है और मेलोडी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस गाने को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है प्रोड्यूसर्स के द्वारा। आई एम होपिंग ये फिल्म और ये गाने लोगों के लिए एक यादगार बन के और बेंचमार्क बन के रहे हैं इंशाल्लाह। सोनू जी, जैसे आपने भी बताया कि कई लोग अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं क्रिएटिविटी में, कई कंपोजर्स सिंगर्स बन रहे हैं, सिंगर्स एक्टर्स बन रहे हैं, तो आपने भी कुछ फिल्में की थी, बहुत पसंद आया था आपका काम हमें। हम चाहते हैं कि आप वापस कुछ ऐसा कुछ पर्दे पे वापस कुछ होगा, और स्पेशली अभी छानो मिर्जा भी आ गए हैं, अब बलविंदर सिंह फेमस हो गया, मैं एक्टिंग कर रहे हैं वो, तो आप एक्चुअली मैं अपनी जो भी मैंने फिल्में की थी उसमें से लव इन नेपाल के अलावा मैं किसी भी और फिल्म से ज़्यादा सहमत नहीं था। लव इन नेपाल एक ही फिल्म थी जिसे मैंने खुद पसंद किया और जिसे सबने पसंद किया था, लेकिन वो फिल्म बहुत लेट रिलीज़ हुई थी और अपने समय से पहले की फिल्म थी वो। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सिंसियर मानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में जो लोग भी काम करें, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो या स्टूडियो हो, वो उतने ही पैशनेट होने चाहिए उस प्रोजेक्ट के बारे में जितना मैं हूँ। क्योंकि मैं जब भी कोई काम करता हूँ, चाहे वो गाना हो या टेलीविज़न हो या एक्टिंग हो, मैं अपना खून निकाल के काम करता हूँ उस पर। तो जितना सिंसियर मैं हूँ, अगर मेरे आसपास के लोग उतने सिंसियर ना हों तो मज़ा नहीं आएगा मुझे लाइफ में। इसलिए मैंने अभी तक कोई फिल्म ऐसी नहीं की है या साइन की है जिसमें आप मुझे देख पाएंगे। वैसे भी मेरे पास वक्त नहीं है, इतनी प्रेशियस लाइफ है, और मुझे बहुत दुख होता है कि 100 दिन आप एक फ़िल्म को दें, शूटिंग में, डबिंग में, प्रमोशन में, और उसके बाद वो फिल्म ठीक से लोग देख ना पाएँ। इसलिए मैं कोई फिल्म अभी तक मैंने नहीं की है। अगर कोई सही समझदार लोगों का सेटअप मुझे समझ में आया और उन्होंने मुझे प्रपोज किया अपने लिए, तो मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा कभी भी। मुझे सुनने में आ रहा है कि आप कंपोजिंग में जा रहे हैं। जी हाँ, मैंने फिल्म प्रपोज किया है। अभी मैं उसी में बिजी हूँ काफ़ी। कुछ फिल्में हैं, जल में कंपोज किया है, सुपर से ऊपर आ रही है, रोमांस की फिल्म है, और सिंह साहब द ग्रेट का टाइटल सॉन्ग मेरा है, अनिल शर्मा की फिल्म, और एक और फिल्म आ रही है जिसका मैं अभी खुलासा नहीं करूँगा, वो प्रोड्यूसर्स खुद बताएंगे आपको। एल्बम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।